Hi all of you, welcome to my channel. My name is Smriti. Your coach from Smriti's Knowledge is present here. We are learning the NCERT Class 7 Science Chapter Fiber to Fabric. So we are learning the topic, that is the topic number 1, wood. In wool, we have to learn today the processing of fibers into wood. So in this topic, in this 23 slides, we will learn that how do we make, or the people who work in this industry, how do they make fibers, or these raw materials into fibers and then to wool. So let's start. The wool is used for knitting or for weaving shawls, is the finished product of a long process. Now we have to there are some steps that we must follow for the processing of fibers into wool, right? So step number 1 is that the fleece of the sheep along with thin layer of skin is removed from the body. The process is called shearing. तो जिस प्रोसेस में शेप के बॉडी से उनका जो हेयर है, मीन्स जो फ्लीस है, उसको जब रिमूव किया जाता है, वही प्रोसेस होता है शेयरिंग. तो इस प्रोसेस में शेप के फ्लीस के साथ भी उनका एक ऊपर जो अपर थिन लेयर ऑफ स्किन है वो भी रिमूव हो जाता है. Now how it is shaped? It is shaped by using a sewing machine, like one that is used by a barber, similar to that. So shearing does not hurt the shape because the uppermost layer of skin is dead. Now you will be wondering that कि हमारा जो फ्लीस के साथ जो अपर लेयर ऑफ स्किन जो रिमूव हो जाता है, तो शेप को दर्द नहीं होता होगा? नो, बट यू विल बी वंडरिंग व्हाई. क्योंकि ना हेयर तो हम लोग भी कट करते हैं, और क्या हमको दर्द होता है? दिल की दर्द अलग बात है, लेकिन फिजिकली तो दर्द नहीं होता. और यहाँ पर जो बोला जा रहा है कि अपर मोस्ट लेयर ऑफ स्किन भी हट जाता है, वो अपर मोस्ट लेयर जो है ना वो डेड होता है, उसकी सेल्स डेड होती है, इसलिए उसको निकाला जाता है, तो उनको दर्द नहीं होता. नाउ द शेयरिंग और कटिंग द हेयर ऑफ शेप. Now the shearing or cutting the hair of the sheep is done in hot weather of summer so that the sheep may survive without their protective coat of hair. तो जब हम लोग हेयर जो उनका जो फ्लीस है, जब हम लोग उसको शेयर कर लेते हैं या तो कट कर देते हैं, क्या होता है ना, वो हॉट वेदर में उनका वो जो फ्लीस होता है उसको कट किया जाता है. क्योंकि ना शेप मीन्स जो प्रोटेक्टिव कोट ऑफ हेयर है ना, उसके बिना जी नहीं सकते. किसमें? विंटर सीजन में. वाई? बिकॉज द हेयर ऑन देयर बॉडी प्रोटेक्ट देम फ्रॉम द हीट. बट इफ दैट विल बी इन समर, देन they will means feeling extremely hot, right? So that is the cutting the hair of sheep is done in hot weather of summer. Now the hair of sheep grown again before the onset of winter and protect them in cold weather. तो वो जो सिप का हेयर होता है ना, वो विंटर आने से ही पहले वो मीन्स आ जाता है, फिर से ग्रो कर लेता है, और जो कि उनको मीन्स सिप को कोल्ड वेदर से प्रोटेक्ट करता है. नाउ द फ्लीस और हेयर ऑफ सिप प्रोवाइड्स वुलन फाइबर्स. जो फ्लीस या तो हेयर होता है ना वो सिप का, वही हमको वुलन फाइबर देता है. द थर्ड पॉइंट इज दैट वुलन फाइबर्स are then processed into obtain woolen yarn.
Now, can you see the picture here? So imagine that, identify what we are going to learn. Yes, right. We are going to learn the washing of the fleece of the ship. So the step 2. Step 2, like the body or hair of sheep contains dust, dried sweat, grease, etc. तो सेब तो ऐसे नहीं है कि चलो नहाने का समय हो गया, चलो नहाते हैं अच्छे से सोप या डिटर्जेंट लगाकर, तो वो तो वैसे नहीं करते ना. उनको जहाँ मिलता है, कहाँ पर, मड में तो ग्राउंड में, जैसे सोते रहते हैं, खेलते रहते हैं, बैठते हैं. तो उनका जो बॉडी है तो हेयर है ना, वो डस्ट कंटेन करता है, या तो उनका जो स्वेट होता है वो ड्राइड स्वेट, और ग्रीज मीन्स जो डर्टी थिंग्स होता है, तो वो भी सारा हो सकता नहीं होता है. तो the seared hair of sheep are thoroughly cleaned by washing with soap or detergent and a lot of water in tanks. This process of washing of seared hair is called scouring. तो ये जो seared hair है या तो fleece है sheep का, उसको soap या तो detergent and बहुत सारे वाटर टैंक में लेकर उसको उसका सफाई किया जाता है. तो वही सीयर्ड हेयर या तो फ्लीस का वॉशिंग जो प्रोसेस होता है, वही उसको हम लोग स्काउरिंग बोलते हैं. नाउ स्काउरिंग मेक्स द फ्लीस ऑफ शीप क्लीन. ये जो स्काउरिंग होता है उसमें वॉश किया जाता है वो फ्लीस को, तो वो फ्लीस क्लीन हो जाता है स्काउरिंग के बाद. देन द स्काउट फ्लीस इज देन ड्राइड, और ऑब्वियसली वो अभी पानी में सफाई किया गया है तो वो वेट ही होगा, तो उसको ड्राई भी किया जाता है उसके. और अब नाउअडेज स्काउरिंग अब मशीन के हेल्प में किया जा रहा है. द स्टेप 3 इज दैट आफ्टर स्काउरिंग सटिंग इज डन. तो स्काउरिंग के बाद सटिंग किया जाता है, मीन्स वॉशिंग के बाद उनको सेपरेट किया जाता है. The process of separating the fleece of a sheep into sections according to the quality of woolen fibers such as fine, coarse, long, short, etc. is called setting. तो हम वॉश करने के बाद तो जो शिप का फ्लीस होता है वो तो एक ही साइज़ का नहीं होता, कि एक ही क्वालिटी का नहीं होता. मैं आपको पहले से ही बोली थी कि जो हमारा अंडर हेयर होता है ना वो सॉफ्ट होता है, उसके बाद जो अपर लेयर होता है वो थोड़ा सा कोर्स होता है. राइट, बोले थे ना, कुछ आ रहा है माइंड में, तो वही. तो उसको हम लोग सेपरेट भी करना है, कोई छोटा होगा, कोई बड़ा होगा, कोई सॉफ्ट, कोई कोर्स, कोई फाइन, तो अलग अलग होता है, तो उनको भी सेपरेट करना है. देन वही प्रोसेस जो सेपरेट किया जाता है अकॉर्डिंग टू द क्वालिटी ऑफ वुलन फाइबर इज नोन एज सटिंग. द स्टेप 4 इज दैट आफ्टर सॉर्टिंग सम छोटे छोटे जैसे फ्लॉपी फाइबर्स होते हैं, am I right? वो फ्लॉपी फाइबर्स को हम लोग बर्ड्स क्या बोलते हैं, बर्ड्स, वो हेयर से निकाला जाता है. उसके बाद फिर से उसको स्काउट किया जाता है, मीन्स फिर से वॉश किया जाता है, उसके बाद ड्राई किया जाता है. नाउ जो वूल ऑब्टेन होता है वो फाइबर्स में आने के लिए रेडी होता है, मीन्स फाइन होता है. द स्टेप नंबर 5, द नेचुरल फ्लीस और हेयर ऑफ शेप इज वाइट और ब्राउन इन कलर. नाउ इमेजिन कि हमारा एक स्वेटर है, पर्सनली मेरा एक स्वेटर है, वो फ्लोरेसेंट ग्रीन कलर का है. तो वो किसी ऐसे शेप को देखा है जो कि फ्लोरेसेंट ग्रीन कलर का है? कहीं देखा है? देखा होगा तो कमेंट कर देना.
नहीं, मैं तो कहीं नहीं देखी, ऑब्वियसली नहीं भी होता है। तो वो एक्चुअली जो सीप पाया जाता है ना, वो यूजुअली वाइट होता है, ब्राउन होता है, या तो ब्लैक भी होता है। लाइक हियर इन द पिक्चर, आई थिंक यस, ब्लैक, देन यू कैन सी वाइट, प्योर वाइट, और ब्राउन भी होता है। नाउ द वाइट woolen fibers obtained by setting can be dyed in different color। तो ब्राउन को और ब्लैक को तो डिफरेंट कलर में डाई नहीं किया जा सकता, तो उसको ऐसे डिज़ाइन में किया जाता है यदि उसके ऊपर कुछ प्रिंट किया जा सकता हो। और जो वाइट होता है उसको हम डिफरेंट कलर्स में डाई कर सकते हैं, तो कलर दे सकते हैं। Am I right? Yes। तो उसके बाद वो क्या मजेंटा हो जाता है, या तो कोई भी कलर हो जाता है। नेक्स्ट द स्टेप नंबर 6। स्टेप नंबर 6 में ये 3 पॉइंट्स है, आई थिंक ये 3 है या हाँ 3 पॉइंट्स है। तो द फर्स्ट पॉइंट इज दैट फाइबर्स आर स्ट्रेटेड, कॉम्ड एंड रोल इनटू यार्न। तो फाइबर्स क्या होंगे, थोड़ा सा घूमकर होके, क्या थोड़ा सा कोई कर्ल होगा, तो वैसे जो फाइबर्स को स्ट्रेट किया जाता है बाय कम्बिंग एंड उसको यार्न में रोल किया जाता है। देन द लॉन्ग वुलन फाइबर्स आर स्पन और ट्विस्टेड इनटू थिक यार्न कॉल्ड वूल विच इज यूज्ड फॉर नेटिंग सेट। और जो लंबे वाले जो ऊल होते हैं उसको स्पन या तो स्पिन किया जाता है, उसके बाद उनको ट्विस्ट करके थिक यार्न में ट्रांसफॉर्म किया जाता है या तो प्रोसेस किया जाता है, जो कि ऊल होता है, जिसको हम लोग ऊल कहते हैं, राइट। नाउ विच इज यूज्ड फॉर निटिंग और निटिंग स्वेटर्स। दादी माँ को देखा है निटिंग करते हुए स्वेटर्स। नाउ short woolen fibers are spun to fine yarn and then woven on a loom to make woolen clothes like shawls etc। और जो short woolen fibers होते हैं ना, उनको फाइन यार्न में स्पिन किया जाता है और उनको लूम में लेकर वेव करके ओवन करने के बाद उन लोगों को वुलन क्लॉथ्स जैसे कि शॉल्स या तो सॉक्स में ट्रांसफॉर्म किया जाता है। सो एट लास्ट we know that the 6 steps of processing of woolen fibers are shearing, scouring, cutting, bird separation, dyeing and spinning। तो मैं और एक बार इसको रिमाइंड कर लेती हूँ कि शेयरिंग क्या होता है ना। शेयरिंग जो कटिंग ऑफ द हेयर along with the upper layer of skin of the sheep। now scouring, washing the fleece, cutting मीन्स जो शर्ट मीन्स उनके जो क्वालिटी के अकॉर्डिंग उनको सेपरेट किया जाता है। बर्ड सेपरेशन, जो छोटे छोटे फ्लपी हेयर होते हैं उनको सेपरेट किया जाता है। डाइंग, उनको कलर दिया जाता है। स्पिनिंग, यार्न में स्पिन करके उसको फैब्रिक में बनाया जाता है। तो एक शॉर्ट ट्रिक बताऊँ आपको याद रखने के लिए। SSSBDS, इसको याद रख लेना है। और एक बार मैं अच्छे से लिख देती हूँ। तो SSSBDS, तो फर्स्ट S का मतलब शेयरिंग, उसके बाद स्काउरिंग, उसके बाद सॉर्टिंग, उसके बाद बर्ड सेपरेशन, उसके बाद डाइंग और उसके बाद स्पिनिंग। ये वाला क्लियर हो गया। नाउ उसके बाद ऑक्यूपेशनल हैजर्ड। तो व्हाट इज ऑक्यूपेशनल हैजर्ड नाउ? तो देखिए, हमारे इंडिया में बहुत अमाउंट के लार्ज अमाउंट के वूल प्रोड्यूस होते हैं। तो वूल इंडस्ट्री इज एन इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ लाइवलीहुड फॉर मेनी पीपल इन आवर कंट्री। Am I right? Yes। So the people who do the job of cutting or separating the fleece of sheep into fibers of different qualities are called cutters। जो people वहाँ जो कि फ्लीस ऑफ शिप, जो कि हेयर होता है शिप को, उसको सट करते हैं। सटिंग का मतलब मैं आपको क्या बोली थी? सेपरेट। तो द पीपल हु डू द जॉब ऑफ सेपरेटिंग द फ्लीस ऑफ शिप इनटू फाइबर्स ऑफ डिफरेंट क्वालिटीज आर नोन एज सटर।
और जो सटर्स जब होता है ना, वो जो सेपरेटिंग वाला जब होता है, आप उसको इजी समझ रहे हैं, लेकिन वो बहुत वेरी रिस्की, बिकॉज समटाइम्स वो देखिए जो हमारा सेपरेटिंग किया जाता है तो उसमें भी बैक्टीरिया होंगे, राइट। सिर्फ सोप या डिटर्जेंट में वॉश कर देने से तो सारे बैक्टीरिया वायरस तो निकल नहीं जाएंगे ना, कुछ हार्मफुल बैक्टीरिया वहाँ अभी भी रह जाते हैं। तो वो जो सटर्स होता है ना, वो समटाइम एक बैक्टीरिया है एंथ्राक्स, जो कि उसी फ्लीस में रहता है सिप के बॉडी में, वो मीन्स वो इन्फेक्ट कर देता है सटर्स को, जो कि एक डेडली ब्लड डिजीज कॉज करते हैं, जिसको हम लोग सटर्स डिजीज बोलते हैं। नाउ द रिस्क फेस्ड बाय पीपल वर्किंग इन एनी इंडस्ट्री ड्यू टू द नेचर ऑफ द वर्क आर कॉल्ड ऑक्यूपेशनल हैजर्ड। तो आप सोच रहे होंगे कि इसको ऑक्यूपेशनल हैजर्ड क्यों बोला गया है। जो पीपल अपने एक इंडस्ट्री में उनके वर्क के कारण, उनके जो काम है, उसका जो काम है उसके कारण जो रिस्क वो फेस करते हैं, उसके लिए वो काम को बोला जाता है ऑक्यूपेशनल हैजर्ड। सटर्स डिजीज इज एन ऑक्यूपेशनल डिजीज। Now let's do some questions. So the first question is, where is the longest and the most expensive wool found in silk? So the answer is vicuna. हमारे जो वर्ल्ड में जो सबसे लॉन्गेस्ट और एक्सपेंसिव वूल जो सिल्क में पाया जाता है, वो कौन सा वूल होता है? vicuna wool. The second number question, name the wool obtained from silk. जो ऊन हम लोग सेब से ऑब्टेन करते हैं उसका नाम क्या है? बहुत इजी है, फ्लीस है, फ्लीस। ना वूल ट्रैप्स मोर एयर देन कटन। कटन से वूल ज़्यादा एयर ट्रैप कर देता है। ट्रू और फॉल्स? ट्रू। सो फॉर टुडे दिस मच, थैंक यू, वी हैव कंप्लीटेड द वूल एंड फ्रॉम टुमारो वी विल, from the next video, not tomorrow, from the next video we will start the concept of silk. So thank you.